$80 billion. क्या आप सोच भी सकते हो? दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी सिर्फ 2024 के स्टूडेंट्स छीन लेंगे from India's economy because around 1.5 million Indian students are expected to leave India to study abroad. और ये अमाउंट अगर आप कंपेयर करना चाहो इंडिया की टॉप 4 कंपनीज को अगर आप ऐड कर लो, रिलायंस, TCS, HDFC एंड इवन टू टू थ्री मोर कंपनीज, उनका मार्केट कैप अगर आप ऐड कर दोगे तो भी शायद इतनी अमाउंट ना बन पाए. दैट इज द रियलिटी ऑफ हाउ मच मनी इंडिया कैन लूज. एंड साथ ही साथ द नंबर ऑफ इंडियंस लीविंग इंडियन सिटीजनशिप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. 2.2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने छोड़ दी थी इन 2022. इसका क्या मतलब है? एज एन इंडियन स्टूडेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं इन इंडिया, अब्रॉड? आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस सो दैट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड टुमारो you can make the right decision and know the formula of these students which are making them the most successful community in the US, Australia. कहीं भी Indians जाते हैं, they are becoming the 1% of the most successful community. Let's talk about all of that in depth today. So take a look at these numbers on your screen right now. A total of 17.5 lakh people have given up citizenship since 2011. They represent some of the best citizens we have in America. The Class 12 board exams are underway. Soon after that, at least a dozen students from Hyderabad's Gitanjali Senior School are all headed overseas for higher studies. Even in fact in 21 and 22 also, the very same pattern has followed. The school says the numbers opting to go abroad has doubled post-COVID. In India, the millionaire outflow is down from 7,500 in 2022. तो स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल क्वेश्चन. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऑप्शन है आपके पास टू इन्वेस्ट लेट्स से 10, 15, 20 लाख रुपीस एंड उसके बाद आपकी इंडिया में शायद 20,000 या फिर 30,000 या 40,000 रुपीस ईयरली सैलरी इंक्रीज होगी, वर्सेस अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं कि अगर 10-15 लाख रुपीस की जगह आप सीधा इन्वेस्ट करो अराउंड 40 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस, एंड उसके बाद जो आपकी इंडिया में सैलरी है, चाहे वो 12 लाख रुपीस पर ईयर है या फिर 15 लाख रुपीस का आपका पैकेज है, दैट विल स्ट्रेट जंप टू 10x, 1 करोड़, 1.5 करोड़. आप कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? तो टियर 1 सिटी में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि दे विल डेफिनेटली चूज द सेकेंड ऑप्शन, कि यूएस या कहीं पे भी पढ़ना, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना 30, 40, 50 लाख रुपीस एंड देन गेट अ रिटर्न ऑफ 1 करोड़ रुपीस का आसपास पैकेज, $120,000, एंड यू कैन लेटर सेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी बैक होम एंड आप अपने लाइफ चेंज कर सकते हो एंड देन योर पेरेंट्स लाइफ एज वेल. दिस हैज बिन अ पैटर्न फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया. वो ऐसे सोचते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू द माइंड, क्योंकि मेजॉरिटी वैल्यू क्रिएशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. आपकी लाइफ में क्या मॉनेटरी वैल्यू जा रही है, दैट इज द फर्स्ट थिंग इंडियन स्टूडेंट्स थिंक ऑफ. Now this is expanding to tier 2, tier 3 cities as well. And now दोस्तों, when it comes to study abroad, the most common exam for English proficiency जो कि 9 out of 10 students choose करते हैं, which is accepted by 12,000 plus universities, is none other than TOEFL. And TOEFL exam is not just accepted in the US but also in countries like Australia, New Zealand, Canada, England. And मैंने भी TOEFL दिया था and I think it becomes the easiest exam for Indian students because first of all the resources, free mock test, all the study material is on their website, plus it is online, so there's not a layer of nervousness कि आपके सामने कोई खड़ा है and who is grading you. This makes it one of the shortest of 3 most popular English tests, and now the new test takers will get an enhanced experience with the reading section shortened with only 2 reading passages and 10 questions each. A more concise and modern writing task which replaces the current independent writing task. So go ahead and use my promo code to get 1,500 rupees discount, and here is the promo code and the link will be in the description below. According to Telegraph India report, Tier 2, Tier 3 cities से जो loan applications आ रही हैं to study abroad, and the number of students going abroad from Tier 2, Tier 3 cities have significantly increased. पहले क्या होता था कि only Tier 1 cities से लोग afford कर पाते थे, could do the right research. Tier 2, Tier 3 cities में resources नहीं होते थे. But thanks to social media, thanks to the right knowledge, thanks to the right people around them, they are able to consider. पहले Tier 2, Tier 3 cities में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सुना जाता था,
एक एजेंट के पास जाओ, वहाँ से उन्हें पैसे दो एंड कहीं पे वो जॉब दिलवा देंगे. बट नो, नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग दोस्तों. दे आर एबल टू फाइंड द राइट प्रोग्राम, राइट यूनिवर्सिटी एंड मेक द राइट डिसीजन on their own, thanks to social media and thanks to internet booming in India and thanks to Jio as well. तो ये सारे trends break हो रहे हैं and people are able to find right opportunities. अब यार आप ये सोचो कि tier 2 tier 3 से लोग afford कैसे कर पा रहे हैं. The reality is they are able to get loans as well. People with the right knowledge are able to get loans. कुछ लोग तो definitely who are rich, they can sell their land, पर with the right knowledge, for example, काफ़ी finance companies in India, they shared their report as well कि वहाँ से loan applications बहुत powerful आ रही हैं. There are many loan platforms in India जहाँ से based on your university without collateral you can get loan. Not to name any, you can find many, and उसके help से they are able to afford their study abroad journey as well. And because of that, the number is expected to be 1.5 million coming up in 2024. और ये नंबर डबल हो रहा है from 2023 which is 750,000. उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स है they are currently in US. 4.5 लाख के आसपास, and then Canada, then UAE and then Australia. And सबसे ज़्यादा कहाँ पे सिटीजनशिप गिव अप हो रही है, दैट इज ऑल्सो इन वन ऑफ दीज कंट्रीज. सबसे ज़्यादा यूएस, देन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड ऑल्सो इटली. एंड आप सोचोगे कि यूके की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग द बेस्ट, प्लस यूके में ब्रेग्जिट आ गया, फिर भी मैनी पीपल आर लीविंग इंडियन सिटीजनशिप for these countries, and biggest reason is that their passport is much more powerful and India doesn't allow dual citizenship. So even though they feel heartfelt emotional when they are leaving Indian citizenship, I'm just talking on their behalf. किसी से भी आप बात करोगे, no one is happy to give up their Indian citizenship. They have to because India is not allowing, and that increases the number of reasons कि Indian economy में impact कम हो जाता है because taxpayer का income India में नहीं बल्कि US, UK जहाँ पे Indian students जा रहे हैं वहाँ पे होगा for the course of 10-15 years. Regardless of the citizenship, India के लिए impact बहुत बड़ा है because Indian students अगर US, Canada कहीं पे भी जाते हैं, regardless of citizenship वो वहीं पे tax pay करेंगे and India will lose on that taxpayer income. पर क्या ये एक्शन में ट्रू है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप 10-15 लाख रुपीस स्पेंड करके मास्टर्स करते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं इंडिया में, इसके लिए भी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. लेट्स से यू आर मेकिंग 10 to 15 लाख रुपीस पर ईयर इन इंडिया. आप अपने आप को अपस्किल करते हो, मे बी मास्टर्स डिग्री, MBA. उसके बाद अगर आपका पैकेज 50 लाख रुपीस भी इंक्रीज हो जाता है, पर इसके बाद जो इंडिया में जो टैक्स इनकम जाती है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर. अगर आप US जाके अगर आप 70-80 लाख रुपीस कमा के भी 30 लाख रुपीस इंडिया भेज दोगे, वो टैक्स इनकम फिर भी बहुत कम होगी टुवर्ड इंडियन गवर्नमेंट. हालांकि शायद आप टैक्स पे कर पाओ इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्स, बट इनकम टैक्स में जो लॉस होगा इंडिया का दैट विल बी बिगेस्ट इवन फॉर वन पर्सन going abroad, and that loss will remain bigger. काफ़ी US में लोग justify करते हैं that they are even though contributing more towards family situation by making $200,000 in the US, पर वो एक family की contribution will still be the highest. Now एक data है जहाँ पे number of students going abroad has reduced. That is number of IITians going to US, and ये number reduce हुआ है. Do you know the reason? This has happened because the number of companies in US going to India have significantly increased. Because for example, अगर आप Microsoft के employees देखोगे, more than 30% of the total employees of Microsoft are Indians, irrespective of the country, and Microsoft has one of the biggest office in India as well. तो ये जो opportunities लोग सोच रहे थे कि यार US आके ही मिलती हैं, वो टॉप कंपनीज में काम करने की अपॉर्चुनिटी दे आर एबल टू गेट इन इंडिया इटसेल्फ. एंड एट द सेम टाइम IITs में जो बच्चे बाहर जाते थे, पहले ज़्यादा जाते थे बिकॉज वीज़ा वॉज ईजियर. नाउ वीज़ा हैज़ ऑल्सो बिकम मोर टफ, प्लस द अपॉर्चुनिटीज फॉर IITians in India has increased. According to the report by The Print, only 3% of Indian students have access to the funding that India is spending on their universities. तो सिर्फ 100 में से 3 बच्चों के पास ही ये एक्सेस होता है, वो भी सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लाइक IISCs या फिर IITs इन टर्म्स ऑफ टेक. तो इस कारण वो सोचते हैं कि probability of them getting the highest opportunities. आप बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई या फिर दिल्ली, इन सिटीज़ को छोड़ दो, कहीं पे भी अगर आप रहते हो, आपको टेक सेक्टर में
कॉम्पिटिशन्स चाहिए, हैकाथॉन्स चाहिए, इन पर्सन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए, दे आर बेयर मिनिमम, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रिमोट ही होंगी. नाउ इफ यू कंपेयर दीज 4 cities in India with around 20 to 30 cities जहाँ पे tech is booming in US like San Francisco, San Jose, New York City, New Jersey, Boston, Chicago, Atlanta, Austin, Dallas, these cities में जितनी opportunities spread हैं, that becomes the biggest reason why people choose US. Because अगर आप US जैसी countries में अगर आप पढ़ने आते हो, it is not just about book knowledge, it is about going to the industry near your university, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखना एंड उनको सॉल्व करना. जब मैं फॉर एग्जांपल इन सब हैकाथॉन्स में गया था, जॉर्जिया टेक, यूजीए, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, ये सारे हैकाथॉन्स में मैंने जब जाकर देखा कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स पढ़ के मैं सॉल्व कर रहा हूँ वर्सेस जस्ट गोइंग थ्रू माई बुकिश नॉलेज, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. हालांकि काफ़ी यूएस यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडिया जैसा आपको फील होगा अगर आप टॉप सिटीज़ नहीं चूज़ कर रहे, but because of these 10 to 15 top cities of US, your experience becomes much more practical as compared to just theoretical. तो इस कारण स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर जाना बैंगलोर हैदराबाद ही है तो चलो यूएस ही चले जाते हैं. Now the big question, why Indian community is becoming the most successful community in the immigrant diaspora. For example, अभी रिपोर्ट आ रही है कि 2024 में Indian students will be first of all highest in any university. एवरेज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स का काउंट चाइनीज स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा होने वाला है. प्लस इंडियंस आर बिकमिंग वन ऑफ द हाईएस्ट प्योर एशियन इमिग्रेंट्स इन द यूएस एज वेल. तो जितने भी प्योर एशियन इमिग्रेंट्स हैं, इंडियंस आर द हाईएस्ट एंड दे आर बिकमिंग एज वेल. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, ये अगर नंबर्स आप इग्नोर भी कर दो, पिछले 3-4 सालों से even though Indians might not be majority in immigrants category, but they always have been the most successful community in the US. For example, उनकी salaries देख लो, they make an average $120,000 से भी ज़्यादा. But if you compare with any other immigrants, Chinese immigrants, Vietnamese immigrants, even Filipino immigrants, Mexican immigrants, comparing with any category of immigrants, Indians are 5 steps ahead of them. Their average salary is $80,000. Americans' average salary is $50,000 to $60,000. But Indian immigrants' average salary is $120,000. अगर आप एक स्टेट की बात कर लो तो जॉर्जिया में they are 1% of Georgia's population where I am, but they pay 6% of the taxes contributing to their economy. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America, and we should make sure that we streamline the immigration process for those who come here to obey the law, pay their taxes, and be the most creative and productive in society. And इसके 3 reasons है. First of all, the principles of Indians choosing the highest growing market. For example, मैं अगर अभी जॉब ढूंढने जाता हूँ, मैं सोच के जाता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखूंगा जहाँ पे सैलरी पहले से ही ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल द टेक सेक्टर, AI, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ पे सैलरीज पहले से ही ज़्यादा है, वहाँ पे आप जाओगे तो पहले चांसेस ज़्यादा होते हैं. नाउ सेकंड डिफरेंस इन द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इज कि दे गेट इनटू मोर डाइवर्स ग्रुप्स इजीली, बिकॉज हमारी नेचुरली इंग्लिश इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल ग्रुप्स इन द US. वी आर एबल टू मिक्स अप ईजिली. और अगर आप ग्रुप्स भी देख लो, मुझे जितना मैंने पिछली वीडियो में 3 साल पहले वीडियो में भी बताया था कि बाकी कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स दे ट्राई टू हैव intra-cultural friends, but we are willing to make inter-cultural friends at least for networking. हालांकि हम भी अगर social level पे दोस्त बनाना चाहें, we choose Indian students, but networking level पे we are not biased. We are okay to go one step ahead, network with any person from anywhere in order to get into that company या फिर in order to get into that network of smart-minded people. And अगर आप कहीं पे भी न्यूयॉर्क सिटी में diverse groups में कोई भी मीटअप पे जाओगे, meetup.com पे बहुत सारे मीटअप्स होते हैं. मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि वहाँ पे बाकी इमिग्रेंट्स हो या ना हो, इंडियंस आपको एक ना एक दिख जाएंगे. एंड नंबर 3 रीजन व्हाट मेक्स अस यूनिक इज वी नेवर फील कंटेंटेड. हालांकि मास्टर्स डिग्री की बात कर लो, मेजॉरिटी ऑफ US सिटीजन्स, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स, दे से कि यार आई डोंट वांट टू डू मास्टर्स डिग्री. एक बार कोई एवरेज अमेरिकन अंडरग्रेड डिग्री करके, हालांकि ओनली 70% ऑफ अमेरिकन्स have the potential to have a bachelor's degree itself. उसके बाद भी अगर कोई मास्टर्स डिग्री कर भी लेता है वो बहुत कम है. और
क्यों नहीं वो करना चाहते? बिकॉज दे गेट इन टू देयर कंफर्ट जोन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा पहले से ही $100,000 या $70,000-80,000 कमा रहा है, दे फील लाइक वाई आई शुड टेक 2 years of break and then go from a salary of $70,000 to $100,000. But Indians, even after coming to the US, एक डिग्री हो भी जाएगी, फिर भी उस जंप के लिए दे आर विलिंग टू डू अ पार्ट टाइम MBA या फिर पार्ट टाइम मास्टर्स टू कीप अपस्किलिंग देमसेल्व्स एंड नेवर फील कंटेंटेड. प्रियंका चोपड़ा ने एक बार कहा था कि इवन दो she became Miss World, she never felt contented. उसके बाद Bollywood actress, she never felt contented. उसके बाद Hollywood एक्ट्रेस से पहले हॉलीवुड सिंगर, तब भी कंटेंटमेंट फील नहीं आई थी, तो शी वेंट अबव एंड बियॉन्ड. देन हॉलीवुड एक्ट्रेस, एंड अभी भी शी नेवर फील्स कंटेंटेड. कीप ऑन ग्रोइंग ऑन हर गोल्स. हालांकि प्रियंका चोपड़ा कुड बी एन एक्सेप्शन, बट द आइडिया ऑफ नेवर फील कंटेंटेड इज ऑलवेज विद इन अस, दैट हेल्प्स अस टू हैव द क्वेस्ट टू लर्न मोर एंड द क्वेस्ट टू ग्रो. तो ये सारे रीजंस है विच आर मेकिंग अस मोर सक्सेसफुल. एंड हालांकि इसमें इंडियन इकोनॉमी का लॉस है, आप मानो या ना मानो, बट ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि ग्रोथ में अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा इंडिया है. कोई भी स्टार्टअप हो, अगर वो US में क्रिएट भी होता है, दे हैव अ गोल इन माइंड टू एक्सपैंड इन इंडिया एज वेल. और ये एक्सपेंशन के कारण इंडिया को कहीं ना कहीं रिटर्न मिल ही रहा है. सो दैट्स माई रिसर्च एंड ओवरऑल थॉट्स. सो अगर आप भी कल पढ़ने के लिए आ रहे हो अब्रॉड, do not forget about India and keep that mission also in mind. Jai Hind, Vande Mataram, and I'll see you all in the next one.